Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn book back question answers of prose number 1 from grade 11 Hindi reader book Swatantrata Ka Mool. So the name of the prose is Swatantrata Ka Mool. On this particular topic I had already made a video. On request of one student I am going to make another video only for book back question answers of this particular lesson. So let's see what are the questions are there in your book bag. Okay, so first Roman letter, it is only the tough word with their meaning. Second Roman letter में आपको संदर्भ के सहित व्याख्या करना होगा. So let's see how to explain this. So संदर्भ के सहित जब आपको व्याख्या करने के लिए पूछा जाए, whenever they will ask like this type of question, in this type of questions what usually they will ask, one simple line from this particular topic they will be available on your question paper, and they will ask to explain that particular line with the introduction of that particular topic and the writer's name and what are the line is telling about. संदर्भ सहित व्याख्या जब आपको क्वेश्चन मिले तो पहले आप प्रसंग लिखेंगे. प्रसंग में आपको लिखना क्या है? प्रसंग में आपको लिखना है कि from which topic this particular line had taken. So you have to write the topic name or which lesson. अगर ये कविता से लिया गया है, so you have to write the poem name. If it is from a prose, then you have to write the proper prose name. Then what you have to write? Who had written this prose? So after writing about the writer, name of the writer, then you have to write the gist of or the summary of this particular line. You have to explain in one line. Then व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा? व्याख्या में आपको full explanation लिखना होगा in an elaborate manner. So here the first question is, स्वतंत्रता की चाह उसी व्यक्ति की सच्ची हो सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता. जैसे मैंने कहा आपको पहला लाइन जो आपका क्वेश्चन होगा, you have to read carefully. Then you have to find out from which lesson this particular line had taken. Then you have to write प्रसंग. प्रसंग में आपको क्या लिखना है? Only introduction part. प्रस्तुत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ स्वतंत्रता के मूल पाठ से लिया गया है. If you are feeling difficulty to write this sentence, then you have to simply write प्रस्तुत गद्यांश स्वतंत्रता का मूल से लिया गया है. इस पाठक के लेखक का नाम है आचार्य श्री तुलसीदास. आचार्य श्री तुलसी ने इस पाठ को लिखा है. बस हो गया आपका प्रसंग में from which topic this line has taken and who has written this particular prose. Then what is the next thing you have to write? You have to just summarize the particular line, explanation of this particular line in single sentence. जैसे यहाँ पर लिखा है, इस अंश में दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना जीने को सच्ची स्वतंत्रता कहा गया है. So here the gist of this particular line is real freedom, real independency is when you are going to get it, if you are not a barrier or if you are not creating any obstacle for others' independence or for others' freedom, then that is a real freedom. So this is all about the line. Then come to now व्याख्या. व्याख्या में आपको लिखना क्या है? Explanation. So explanation you have to write in a simple words whatever you understood. If it is possible from your own words you can write. So यहाँ पर लेखक का ये विचार है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र और रहना पसंद है. हर व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है, लेकिन
हम अगर खुद आजाद होना चाहे तो इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरों की आजादी छीने. So everybody love their freedom. Everyone, nobody loves to be kept by some other one or ruled by some others. Everybody want their independency or their own freedom. So it is also their normal rights. By born they are having the right that they should be freedom. They can do all the work according to themselves. But that doesn't mean that for our freedom, for the sake of our freedom, we should be a obstacle or we should create some trouble in others' freedom. खुद की आजादी पाने का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों की आजादी छीने, क्योंकि अगर आप दूसरों की आजादी में बाधा डालोगे, अगर आप दूसरों की आजादी में कोई भी समस्या उत्पन्न करोगे, तो क्या होगा? ये सच्ची आजादी नहीं है, क्योंकि आप खुद तो स्वतंत्र हो जाते हो, लेकिन दूसरों को स्वतंत्र देखना नहीं चाहते. तो कहाँ से हुआ ये सच्ची स्वतंत्रता? सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है, सच्ची आजादी का मतलब है, आप खुद भी फ्री हो और दूसरों को भी फ्रीडम देना चाहिए, ना कि आप खुद अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और दूसरों को इंडिपेंडेंट होने ना दो. ये सही में प्रॉपर फ्रीडम नहीं हुआ, सच्ची आजादी नहीं हुआ. सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता वही होता है जहां पर आप खुद पे खुद आजाद होने के साथ साथ दूसरों की आजादी या स्वतंत्रता पर कोई बाधा ना डाले. लेकिन होता क्या है, कुछ मनुष्यों को, कुछ इंसानों को ये नेचर, इंसानों का ये नेचर रहता है कि खुद आजाद हो जाए, लेकिन दूसरे उनके नीचे दबे रहे, उनके बात माने. तो ये सही में आजादी नहीं हुआ. सो दिस इज द explanation of that particular line. Similarly, next question, हिंदुस्तान में बड़प्पन, यहाँ पे बड़प्पन लिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन इज बड़प्पन, प पे जगह पे ब लिखना होगा. हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी श्रम नहीं करना, श्रम करने वाला छोटा माना जाता है. तो प्रसंग में आपको लिखना क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के स्वतंत्रता का मूल नामक पाठ से लिया गया है. इस पाठ के लेखक हैं आचार्य श्री तुलसी, और इस अंश में लिखा क्या गया है कि हमारे देश में जो श्रम करता है उसे नीची दृष्टि से देखा जाता है. That means here the gist or some of this particular line is, in our country, who is doing hard labor and not depending on others for his and his family's maintenance or his daily needs, all the people in our society, they won't consider this type of people as a great people. इन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं. लेखक का कहना है कि दूसरे देशों में यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि जो अदर कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे जो मेहनत करता है, who are very laborious and doing their own work and earning from that work, in that other countries, those people are very respectable people. But in our country, if one person is doing very hard labor and doing his own work, whatever it may be, hard work he is doing, he is not depending on other, he is doing hard work to maintain his life, to rule his life successfully. In our society, he was not considered as a very prestigious person. हमारी दुनिया में, हमारी देश में क्या होता है, लोग जो श्रम करते हैं, जो श्रम करते हैं, कुछ काम धाम मेहनत करके, कुछ श्रम करके अपना गुजारा चलाते हैं, उन्हें अच्छी दृष्टि से, अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है. लेकिन अन्य देशों में जो ऐसा करता है, उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है. और हमारे देश में क्या होता है,
जो लोग बिना मेहनत किए, विदाउट एनी हार्ड वर्क, they will get all the luxurious facilities, all the luxuries, and apart from that they are enjoying a great life, luxurious life, having very big bungalow, very high priced cars, and they are maintaining a hi-fi life in our society. They are considered as the biggest person or very prestigious person in our society. Maybe they will have some balance from their ancestors, or they are having some other things, but under those people, some people might be worked, and who are working under them, they are not considering as them as a people. They are considering, they are looking at them as a very inferior people. So बल्कि ये एक बुरी चीज है, जो श्रम करता है वो सही मायने में बड़ा होता है। श्रम करके कुछ पाके उसमें खुद अपने आप का गुजारा मिटाना, चलाना, और बिना कुछ काम किए ऐसे ही शानो शौकत भरे जीवन को बिताना, ये दोनों अलग बात है। यहाँ पे ग्रेट कौन हुआ? जो हार्ड वर्क करता है, जो श्रम करता है, एक्चुअली वो शाबाशी का हकदार है। जो श्रम नहीं करता है वो कैसे शाबाशी का हकदार है? लेकिन हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में उन्हीं लोगों को पूजा जाता है, उन्हीं लोगों को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। Then come to the next one. क्वेश्चन इज, दूसरों के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना, प्रवृत्तियों के स्वर को ऊंचा बनाए रखना और दूसरों के साथ एकता स्थापित करना स्वतंत्रता के मूल्यों को प्रतिस्थापित करना है। सो जैसे मैंने आपको बताया, प्रसंग में आपको लिखना है कि ये पर्टिकुलर लाइन कहाँ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। सो यहाँ पे हमारे लाइन यहाँ से कहाँ लिया गया है, यह गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ स्वतंत्रता का मूल से लिया गया है। इसके लेखक है आचार्य श्री तुलसी, और इन पंक्तियों में उन्होंने क्या लिखा कि अपने स्वार्थ को त्याग करने और मिलजुल कर रहने की भावना को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बताया है। दैट मीन्स if you want to be independent, if you really want the freedom, then what are the main two pillars for this one? What are the backbone for this particular freedom, real freedom? One thing, first thing is that we have to stay together. There should be a great bonding in each and every one in our society. That is the thing. Another thing is that you should not be selfish. You should be selfless. There should not be any selfishness will be there. If selfishness will come, you are not going to get the real freedom. सो यहाँ पे लेखक का मानना है कि अगर हम स्वतंत्रता के मूल्यों को स्थापित करने चाहते हैं, तो उससे पालन पोषण भी करना चाहिए। If we want to establish a particular thing, new and good thing, then nurture it, then we have to follow some certain principle. So here, if you want to get real freedom, each and every person will get a real freedom or independence, then what everyone should follow, then how to nurture this one. And how to nurture this one? You have to be selfless. आप आपके बारे में नहीं सोचना। अगर कुछ विपदा आए तो पहले आप अपने बारे में सोचे बगैर दूसरों के बारे में सोचे। पहले दूसरों को आगे रखे, फिर खुद के बारे में सोचे। सो यहाँ पे अपना स्वार्थ का बलिदान दीजिए, अपना स्वार्थ का त्याग कीजिए। और दूसरा क्या होता है, जो भी समाज में रहते हैं, कोई भेदभाव आपके अंदर नहीं रहेगा। जैसे फाइनेंशियल लाइक रिच एंड पुअर, धनी गरीब, और एजुकेटेड अनएजुकेटेड, शिक्षित अशिक्षित, और फिर कोई जाति प्रथा, कोई संप्रदाय प्रथा, कोई ये सब कुछ नहीं चलेगा। सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे तो सच्ची में आपको आजादी मिल सकती है। और इस आजादी का सच्ची आजादी का पहला फंडा या फिर पहला प्रिंसिपल ये है कि आप
आपके अंदर जो भी लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर कोई भेदभाव ना होगा, सब समान होंगे, पहला चीज। दूसरा होगा क्या, आप लोग खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। इफ यू बिकम सेल्फिश, इफ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, then this is not the correct way to establish a real freedom. So this is all about saprasang vaksha. Then come to the next Roman letter. वाक्य में प्रयोग कीजिए. So here some words are there. What you have to do? You have to make the sentence using those words. So first word is समझौता करना. समझौता करना means compromise. If you are going to do compromise, so समझौता करना मतलब compromise. हमें अपने अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए. Others means what are the principles, what are the main things in your life. You should not compromise with your principle, because everyone is having their own principle. So you should not compromise with the principle which are right. The next one is स्वावलंबन. स्वावलंबन means self reliance. So परिश्रम ही व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार है. अगर आप लेबर करोगे, अगर आप हार्ड लेबर करोगे, हार्ड वर्क करोगे, then you should be self reliance. कोई अगर खुद बहुत मेहनत करके काम करता है तो खुद स्वावलंबन हो सकता है. वो किसी पे बोझ नहीं या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता. आरोप लगाना मीन्स टू ब्लेम. सच्चाई जाने बिना किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए. सो विदाउट नोइंग द ट्रूथ यू शुड नॉट ब्लेम एनीवन. सच्चाई जाने बिना किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहिए. सूत्रपात करना मीन्स इनिशिएट. सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने आजादी पाने का सूत्रपात कर दिया था. So in 1857 this freedom fighting to get the proper freedom to make India as an independent country. So this concept was initiated on the year of 1857. Then next word is शालीनता. शालीनता का मतलब हुआ कटसी और डिसेंट. सो सज्जन अपनी शालीनता सदा बनाए रखते हैं. जो अच्छे लोग होते हैं, जो who are very good people by nature, those people always follow some courtesy or decency of themselves. प्रतिस्थापित करना मीन्स सब्रोगेट. सो समाज में उच्च मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करने में हमें अपना योगदान देना चाहिए. So from here you might get 2 questions for 2 marks. पर्यायवाची शब्द लिखिए. पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? Synonyms. In English, like we are having synonym words. Similarly, Hindi also we are having some synonym words. तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द. So first word is चाह. चाह means wish. In English, the meaning of चाह is wish. So चाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा, चाहत, अभिलाषा, कामना. Then बिघन means obstacle, barrier. So उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाधा, अड़चन, रुकावट. Next one is त्याग का मतलब क्या हुआ? leave. So उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो छोड़ना, सौंपना, देना. Next one is विकास means development. उसका पर्यायवाची शब्द होगा प्रगति, उत्थान, उन्नति. The next one is परिणाम means result. So result का पर्यायवाची शब्द, परिणाम का पर्यायवाची शब्द हिंदी में होगा फल, नतीजा, प्राप्ति. Then come to Roman letter 4. एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए.
स्वतंत्रता का मूल पाठ के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी की राजस्थानी में लिखे गए बृहद काव्य का नाम क्या है? सो क्या है? Which one was the great book written by Acharya Sri Tulsi, and it was written in Rajasthani? So that one is Kalu Yaso Vilas. The name of that particular book is Kalu Yaso Vilas. So as I told you, always children, you have to be very careful about the writer when regarding their date of birth, whenever they die, what are their important qualification, and what are the books they have written. Which one is the important thing you have to learn in the introduction about writer. हिंसा का पहला चरण क्या है? चरण means foot. So what was the first foot of violence? That one is आदमी का आदमी से घृणा करना. If man hates to man, then it will be the first foot of violence. So आदमी का आदमी से घृणा करना हिंसा का पहला चरण है. And this is also one important question. युद्ध कब होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता, तब युद्ध होता है. श्रम करने वाला क्या माना जाता है? छोटा माना जाता है. सो ये भी जो युद्ध कब होता है, श्रम करने वाला, ये भी important questions है. हिंदुस्तानी की आत्मा क्या है? What is the soul of all Hindustani people? What is the soul of Hindustan means India. What is the soul of India? त्याग, sacrifice. आत्मा का हनन क्या है? अपना स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ का संग्रह करना आत्मा का हनन है. So if you become very selfish, then it is the going to kill your soul. हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी क्या है? वो कैसा है? हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी श्रम ना करना है. परतंत्रता से मुक्ति ना मिलने का क्या कारण है? परतंत्रता से मुक्ति ना मिलने का कारण उसे पाने की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता पाते हो लेकिन कंप्लीट नहीं होता है वो. Fully you are not getting independent. We are not becoming independent. So that is the thing. So we are having some leakages or some drawbacks in that procedure. That's why we are not getting proper independence. 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए. So इसमें जो questions है, जो लास्ट वन, स्वतंत्रता के मूल्यों को कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है, एंड दिस वन, स्वतंत्रता के विघटन का कारण. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. सो स्वतंत्रता में विघटन क्यों घटता है? बाधा क्यों घटता है? व्हाई ऑब्स्टेकल कम्स एंड फ्रीडम और कंप्लीट इंडिपेंडेंसी. फर्स्ट वन इज स्वतंत्रता के विघटन के कारण अपने स्वार्थ का संग्रह करना. इफ यू बिकम वेरी सेल्फिश, अपने जाति समाज का हित प्रधान मान लेना. इफ यू आर कंसिडरिंग दैट इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व ओनली योर community people's problem, not others, or your society problem, not other societies. That is also one main cause. Third one, सांप्रदायिक आधार पर अपने संप्रदाय की भलाई के प्रयास में दूसरे संप्रदाय की उपेक्षा करना. भारत में बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध. सो इफ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट only one particular religion to which you belongs to, then it is not the good thing. That means you are betraying the other religions. भाषागत आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना.
In India, so many languages were spoken in different parts, and in different states we are speaking different language. On the basis of this language, if you categorize the people and you are thinking, okay, this particular language people, we have to be think about this language people's problem, this language we have to be careful about the development of this particular language people, then it is also not good. प्रतिहिंसा के जन्म देने वाली हिंसा के बारे में आप क्या जानते हैं? मनुष्य अपना विकास करना अपना अधिकार मान बैठता है। अपना विकास करने के क्रम में अहिंसा की मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाता है। इससे दूसरे जातियों के हितों को आघात पहुंचाता है। इससे संप्रदाय और दल के आधार पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। यही प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है। प्रतिहिंसा क्या होता है? हिंसा के बदले जो हम देते हैं। Every human being wants to be developed. It is human nature. Everyone wants to be developed. But that doesn't mean that whenever you are trying to be developed in that way, in that process, you should just overlook the principle of non-violence. You should be careful. You should give respect to the principles of non-violence. If you won't do that, what will happen? You might be succeed in your life. You might be developed, but thing will be that whatever good for other people, other community people or other society, might be unknowingly you are hurting them or we are going to create problem to them. So ultimately what is going to happen? One or few person will do like that. So entire society, entire community people are going to blamed. Similarly, other community will be there. They will blame on this community and this community will blame other communities. So it will be keep on rotating. So ultimately what will happen? Violence will be created. So प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा ही है। धर्म की हत्या का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धर्म की हत्या से तात्पर्य है कि धर्म की मर्यादा, सूचिता, उसके प्रति फैली आस्था, उसके स्वरूप आदि को नष्ट करना। जब धर्म की हथियार बनाकर दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को आघात लगाया जाता है, किसी धर्म की सच्चाई और अच्छाई जाने बिना उसके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है, घटिया किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तब हमें उसे धर्म की हत्या होती है। धर्म की हत्या मतलब हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन संप्रदाय के लोग हैं। सभी धर्मों का विचार एक ही है। सभी धर्मों का विचार सभी ultimate thing they are going to speak about is same in every religion. And in every religion, चाहे वो मुसलमान संप्रदाय के लोग हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सबका अपना अपना एक मर्यादा है, सबका अपना अपना एक औहदा है समाज में। they are having some respect and they are having some rules, regulation, some tradition or some cultures, and they are the respective peoples are following that, and we should respect every religion. So people should respect other religion people. They should not be they should not be speak some bad things about any religion, because every religion is good, and whatever in every religion it was spoken was same. So you should not
you should not speak something bad about any religion, or you should not blame any religion, because it is not good. If you are going to do this, then you are going to kill that particular religion. धर्म की हत्या करते हैं आप, किसी संप्रदाय की हत्या किया जाता है। तो सारे धर्मावलंबी एक ही है, सारे धर्म का कहना भी एक ही है, सारे धर्म में कुछ आस्था होती है सब लोगों की, उनका कुछ नीति नियम होता है, सबको अपने अपने धर्मों को मानना चाहिए। उसके साथ ही दूसरे धर्मों के लिए उनके मन में आदर रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए, ना कि वो दूसरे धर्मों के बारे में, अगर मुझे अलग सा धर्म के बारे में पता ना हो और मैं उस धर्म के बारे में अपप्रचार करूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है। और क्यों बोलना है धर्म के बारे में इधर उधर बातें, क्योंकि सारे धर्म का लक्ष्य एक ही है, सारे मनुष्यों को मन में आस्था पैदा करना, एक विश्वास पैदा करना। तो ये सारे जो घटिया किस्म के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये सारे बंद होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो धर्म की हत्या कहलाई जाएगी। लेखक किसे संपर्क सूत्र कहते हैं और उसे काटने का क्या परिणाम होता है? संपर्क सूत्र, रिलेशन थ्रेड। दूसरों के साथ मिलने जुलने, उनसे विचार विमर्श करने, मेल जोल बढ़ाने की जिस भाषा आदि का सहारा लिया जाता है, उसे ही लेखक ने संपर्क सूत्र कहा है। यह संपर्क सूत्र हमारी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाएं भी हो सकती है। अपनी मातृभाषा का विकास करने के लिए लोग इनकार देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम अपने हितों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक जगह पर रहते हैं, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, हम लोग अपने अंदर कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सजेशन वगैरह शेयर करते हैं, कुछ थॉट्स शेयर करते हैं, सब मिलजुल के सब रहते हैं। मिलजुल के जो रहते हैं, हमारे फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं, तो उस फीलिंग्स को शेयर करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, एक भाषा की जरूरत होती है। ये आपकी मातृभाषा हो सकती है, मातृभाषा एक साधन है, मुख्य साधन है किसी से मेलजोल बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके अलावा अलग से भाषाएं भी है, तो उस अलग सी भाषाओं को भी हमें अपनाना चाहिए। मातृभाषा के विकास करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को विकास करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी भाषाओं को भी उतनी इज्जत देनी चाहिए, उतनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि नहीं देंगे तो क्या होगा, ये परिणाम स्वरूप होता है कि हम अपने हित तो साथ लेते हैं, लेकिन दूसरों के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। स्वतंत्रता के मूल्यों को कैसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है? स्वतंत्रता के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यकता है कि लोग अपने जीवन में त्याग, शालीनता और उदारतापूर्ण व्यवहार करें। अगर हमें ये जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम का बेसिक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे जीवन में 3 लक्ष्य होने चाहिए। एक तो हम सैक्रिफाइस करना जाने, we should know how to sacrifice, त्याग करना जाने, शालीनता, we should be very down to earth, we should be very decent, we should have some courtesy, and उदारतापूर्ण means we should be very kind, उदार मन हो, हमारा मन काइंड हो, वे दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वार्थ त्याग करें तथा ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, ना ही we should be sacrifice our wishes, our desire. Before that, we should think about others.
That is the one thing. Apart from that, we should motivate other people also to do like that. And all the people should be live together. They share their thoughts together, and they will ready to help each other. Then only it is possible to establish a proper pure freedom or independency. अगर आपको स्वतंत्रता के मूल्यों को स्थापित करना है, अगर आपको स्वतंत्रता के फाउंडेशन को ऐसे एस्टैब्लिश करना है, तो आपको 3 चीजें पर ध्यान देना होगा। हर किसी को त्याग, शालीनता और उदारतापूर्ण व्यवहार करना होगा। हर कोई त्याग करना सीखे, शालीन रहना सीखे और उदार रहना सीखे, और ना ही खुद करे ये सब, दूसरों को भी मोटिवेट करे, दूसरों को भी प्रेरित करे उदार, शालीन और त्यागमय होने के लिए। So this is all about the question answer of Swatantrata ke Mool. I hope children you understood all the question answers. So this is an important lessons. Please read 2-mark questions, and this first 5-mark question and last 5-mark questions. These are very important from exam point of view. Thank you students. Thanks for watching my channel. Thank you so much.